علیکم حضرت فیضان میاں صاحب. کون سا بول رہے حضرت ہم کوٹا راجستھان سے بول رہے ہیں طرف قادری. جی؟ کوٹا راجستھان سے بول رہے ہیں طرف قادری. کیا نام بتا رہے ہیں؟ کوٹا راجستھان سے طرف قادری. جی جی بتائیے. حضرت صاحب جیسے یہ دیوبندی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں شیطان کا آنے کا ثبوت کیا ہے، جیسے میں کیا بتائیں دیوبندی؟ اب بھائی کسی دیوبندی نے جو ہے وہ مرنے کے بعد بتایا ہو کہ نہیں آتا ہے تو الگ بات ہے. نہیں مرنے کے بعد مرنے سے پہلے بتا دیا ہو تو اسے کیسے پتا کہ نہیں آتا؟ غیب کی بات ہے. قبر میں شیطان اس کا کوئی ثبوت ہے تو میں بتاؤں ان کو؟ نہیں میں ابھی خبر میں گیا نہیں ہوں تو کیسے بتا دوں؟ نہیں جیسے کہیں لکھا ہوا ہے کہیں؟ بھائی میں ابھی خبر میں گیا نہیں ہوں. لکھے ہوئے کی جہاں تک بات ہے تو حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں لکھا ہے. نہیں پکی جیسے عقیدہ بنا سکتے ہیں، یہ ایسا کوئی روایت جس سے بھائی عقیدہ؟ آپ نے مجھ سے لکھا ہوا پوچھا، میں نے لکھا ہوا بتا دیا. اب آپ عقیدے پہ آ گئے. عقیدے میں جیسے وہ حضرت نے اس حدیث کا پڑھی تھی عقیدے نا. سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تو اس پر کوئی عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں اس کا شیطان؟ عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک فقہی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. ہاں کوئی مانے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر میں شیطان، یہ ماننا ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ بہت اچھا، ماشاء اللہ حضرت آپ نے حل کر دیا، نہیں تو ہم اسی مدد جاتے ہیں کیونکہ اور انکار کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اصل میں دیوبندی اس کا انکار ضروری طور پہ کر رہے ہیں. نہیں جیسے وہ کہیں کہ جس صحیح طرح حدیث ماننا پیش کرو. ضروری نہیں، سن لو، جس طرح ماننا ضروری نہیں ہے اس طرح انکار کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ہاں جو ضروری طور پہ انکار کر رہے ہیں ان کو روکو انکار کرنے سے. اچھا عقیدہ نہ اور بنایا جائے. ان سے کہو کہ ضروری طور پہ انکار نہ کریں. اچھا قبر میں عقیدہ نہ بنے. ضروری طور پہ انکار کرنے کے لیے بھی صحیح حدیث پیش کریں. اچھا مطلب یہ بھی ہو، دونوں باتیں ہوئی کہ عقیدہ بھی نہ بنایا جائے اور انکار بھی نہ کیا جائے. ہاں انکار بھی نہ کیا جائے اور عقیدہ بھی نہ بنایا جائے کہ قبر میں شیطان آتا ہے. جب علماء نے ذکر کیا ہے اور کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مان لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ضعیف حدیث بتائے کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے بس. دیکھو عقیدہ نہیں ہے نا، وہ عقیدہ ہوتا تو اس میں صحیح درجے کی حدیث صحیح ہوتی. ہاں ہاں اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہی نہیں. بہت اچھا حضرت آپ نے بہت عقیدہ تو وہ 3 سوال ہیں جو قبر میں ہوں گے. ہاں ہاں تیرا رب کو وہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں عذاب یا ثواب یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں. رہی وہ بات، وہ حکیم ترمذی نے ذکر کی ہے، بڑے بڑے علماء محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں وہاں سے نقل کیا. تو جو ماننے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ وہ علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. ہاں جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس انکار پر کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں جیسے کبھی صحابہ کرام کے زمانے میں اذان ہوئی نہیں اس عقیدے سے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بیکان اذان پڑھو. نہ اذان تو دیکھیے، اذان کو کوئی سنت کہتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سنت مانتا ہے کہ اذان سنت ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دلیل پیش کرے. 7 اذانیں دلوائی تھی حضرت حامد رضا خان صاحب سے کہ میری حضرت حامد رضا 7 اذانیں پڑھائی. وہ تو ایک جائز کام ہے. ہاں وہ ایک جائز کام ہے. انہوں نے ایک جائز کام کروایا تھا، ناجائز کام نہیں کروایا تھا. ہاں حضرت میں نے یہ بتا دیا تھا کہ غسل کے بعد بھی اذان دے سکتے ہیں. میں نے سنیے وہ ایک جائز کام ہے. انہوں نے جائز کام کروایا تھا. اگر کوئی ناجائز کام کروایا ہو تو کہا جائے. نہیں وہ تو حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے لڑکے تھے، کہا کہ حضرت حامد رضا صاحب 7 اذانیں پڑھیں. تو میں نے حضرت ایسا بتا دیا تھا کہ غسل کے بعد بھی اذان دے سکتے ہیں. غسل کے بعد بھی غسل کے بعد بھی اذان دے سکتے ہیں. میں نے بتایا دیکھیے اذان کا تو جہاں تک بات ہے تو آپ اذان کی تو جہاں تک بات ہے تو آپ ابھی بیٹھے ہوئے میں آپ ابھی کسی سے اپنے اوپر اذان پڑھوا لو. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو ذہن میں جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی اذان سے. اذان تو ذکر خدا ہے. دیکھیے اذان تو ذکر خدا ہے اور ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اگر کسی کا دل بے چین ہے تو وہ ذکر خدا کروا سکتا ہے. وہ ذکر خدا چاہے اذان کی شکل میں ہو چاہے گہرے اذان کی شکل میں ہو. یا تو کوئی یہ انکار کرتے کہ یہ ذکر خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ذکر خدا سے دلوں کو چین ملتا ہے بس. تو اگر کسی کا دل بے چین ہے، ٹھیک ہے، وہ اذان دلوا لے. 1 بار دلوائے، 100 بار دلوائے، 1000 بار دلوائے، 1,00,000 بار دلوائے، وہ ذکر خدا ہے. نہیں ہے معاملہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے. اس پر میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا کہ علماء نے اسے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر آپ
बार बार उसी पे अगर सवाल करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। मैंने तो आपको क्लियर बात बता दी। मैंने आपको अकीदे का जिस चीज से ताल्लुक है वो है नाईम कब्र और आजाब कब्र, ठीक है। कब्र में आसाइश और कब्र में आजाब वो एक हक अकीदा है अहले सुन्नत का, सही अहादीस करीमा की रोशनी में, और ठीक है, ठीक है। और कब्र के सवालात ये एक हक अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, समझ रहे। अब मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करनी है। बात करूँ। हाँ, तो जो अकीदा है उसको अकीदे से ताल्लुक रखिए उसका, ठीक है। और जिस चीज का ताल्लुक, जो चीज अकीदे के बाब में बयान नहीं की गई है उसको जबरदस्ती अकीदे के बाब में मत डालिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई। मैं ये भी बता दूं कि इस पर कोई अकीदा न रखेगा कब्र में शैतान आता देखा। नहीं, अकीदा रखना एक अलग चीज है। अभी तो कह रहा है कि अकीदे से ताल्लुक नहीं है। अरे अकीदे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि वो उसका मसाइल से तो ताल्लुक है। एक मसला पूछा जाएगा, कब्र का मामला तो अकीदे से है। फिर वही बात आ गई, कब्र की सारी चीजें क्या अकीदे से ताल्लुक रखती हैं? अब पीराने पीर की मैंने नहीं, कब्र की सारी नहीं, कब्र की सारी शैतान मरने तक साथ रहेगा। अरे सुनिए, कब्र की सारी चीजें क्या अकीदे से ताल्लुक रखती हैं? अकीदे से ही है। मन रब्बों का तेरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब्र की सारी चीजें अकीदे से ताल्लुक रखती हैं? हाँ, अकीदे से ही तो है। मसाइल का आप पूछे जाएंगे। सुनिए मसले, मैं वही तो कह रहा हूँ। हर चीज अरे सुन लो, पहले आप सुन लो। आप बताने के लिए फोन करा है तो बताओ, पूछने के लिए फोन करा है तो पूछो। पहले तो ये तय कर लो कि बताने के लिए फोन करा है या पूछने के लिए। पूछने के लिए। हजरत आप क्यों रोक रहे हो? चलो नहीं, चलो पूछने के लिए। हाँ तो पूछो, आप बताओ मत। और अगर बताने के लिए फोन करा है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। आप फरमाओ साहब, आप जैसा फरमाएंगे हम तो वही। आप सुन रहे नहीं हो। एक बात आपने पूछ ली फिर उसी को रिपीट करने लगे। नहीं, आपको वो जवाब मिल गया फिर उसी को आपने रौंदना शुरू कर दिया। नहीं, बात सही। हाँ, ये चीज ठीक थोड़ी है। आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा? अच्छा, जैसे सहाबा किराम को मानना तो अकीदे से है ना, कि सबसे बड़े हम मानते हैं जिस साहबी को, जैसे सिलसिलेवार मानते हैं, वो अकायद में ही तो है। जैसे बादल अंबिया बित्ताकीद जो पढ़ा जाता खुद में। पहले जो है ना, आप अकीदे की डेफिनेशन पढ़ के आओ। हाँ, नहीं हजरत आपसे ही तो जानकारी लेंगे। नहीं, हमसे जानकारी मत लो यार, हमें इल्म नहीं है। नहीं हजरत, आप माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है। जामे अजहर में पढ़े माशाल्लाह। नहीं, जामे अजहर में हमें इल्म नहीं है। आपको माशाल्लाह पढ़ते हैं हजरत 99%। सुनो यार, आप माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा बड़े आलिम है, आपको बहुत ज्यादा इल्म है मुझे लगता है। माशाल्लाह हजरत, आपके आगे क्या है, आपसे माशाल्लाह। आपने तो बताया था, जुनेद साहब बताए थे कि चैलेंज किया था कि कोई भी मसला मुझसे पूछे जामे मस्जिद के पास। आपने चैलेंज किया तो जामे मस्जिद तो हजरत मुसलमान नमाज पढ़ते क्या उसमें जामे मस्जिद में? बताया कि सब बोल है वहाँ देवबंदी टाइप है, तो वो मुसलमानों की मस्जिद मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? हजरत ऐसा बताया, आला हजरत ने लिखा है कि इनकी मस्जिद ही नहीं है, घर की तरह है। इसकी मस्जिद देवबंदियों की, सुलाकुलियों की, देवबंदियों की, वहाबी की। तो जामे मस्जिद देवबंदियों की मस्जिद है? वो सब वहाँ पहले खड़े होते हैं, मैंने भी नमाज पढ़ी थी। सब देवबंदियों को मानते हैं वो लोग। अच्छा, देवबंदियों को मानते हैं? वो मुफ्ती आजम जो रामपुर है, हजरत मुला मुफ्ती महबूब आलम साहब, वो इमाम देवबंदियों को मानते हैं। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। अच्छा माशाल्लाह। इमाम मुहद्दिसीन हजरत आपके वालिद साहब। चलिए, आप मेरी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इन चीजों को नोट करूंगा अपने पास। मानते थे ना हजरत आपके वालिद साहब। अच्छा, आपसे उनका सुना मैंने, कभी रहमतुल्लाह अलैह कहते नहीं सुना। तो मैंने सोचा आपको शक हो कि आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते, वजीउद्दीन साहब को। अच्छा, जिसके आगे रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगेगा वो मतलब ये होगा कि उसे मुसलमान नहीं मान रहे आदमी है। जिसके आगे रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगाया जाएगा मतलब ये होगा कि उसे मुसलमान नहीं मान रहे। आपने अपने वालिद का नाम लिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहा, और मौला वजीउद्दीन साहब का कई बार कहा, तो कभी रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा आपने। अच्छा, तो हो सकता है आपको शक हो कि वो मुसलमान नहीं थे। अच्छा, तो ये भी आप तय करेंगे? नहीं, वो मेरे बारे में कहा ही नहीं, आज तक नहीं कहा, हजरत भी नहीं कहा। मेरे बारे में मौलाना वजीउद्दीन साहब का। भाई मेरी बात तो सुनिए, मेरे बारे में आप तय करेंगे? नहीं हजरत, वो ऐसा नहीं, आप तय करेंगे। अल्लाह ने नहीं, आप कोई फरिश्ता हैं, आप कोई फरिश्ता, वो हदीस पर भी आपने तनकीद की है। हदीस पर आपने तनकीद की, अल्लाह ने भेजा है। हदीस तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि सल्लू कमा खल्फ फासिक फाजिर, नमाज पढ़ लो हर फासिक और फाजिर के पीछे। तो इस पर तनकीद की अहले हदीस की तरह से क्या जरूरत है? इसकी सेहत का कहीं नहीं है, मुदिल है और मुनक़ते है,
तो ये कब्र में शैतान आता है, इसकी सेहत की क्या दलील है? एक हासिद बनकर मौलाना नासिर रामपुरी मुजाहिद मिल्लत है, जमाने के अंदर इमाम अहले सुन्नत है रामपुर के, उनकी इतनी खींचतान करना कि इसने ये हदीस क्यों पढ़ दी। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा जानी के पीछे नमाज पढ़ो, शराबी के पीछे पढ़ो, हदीस बताइए, हुजूर का फरमान बताया। वो तो अभी भी अब यही कह अगर रहे हैं, वो उनकी पूछे कब्र में रिकॉर्डिंग आई शैतान है आता, साबित करो अभी। सही हदीस से। अरे सुनो तो, उसका जवाब मैंने सब दे दिया उन्हें, ठीक है। उनका जवाब उनके बाप दादा और उस्तादों की और दादा उस्ताद की किताबों से दे दिया उन्हें। आप इस चक्कर में मत पड़ो, तो आप आपके उन्हें बस की बात नहीं मुसलमानी है उसे कब मानते हो समझना। साहब? बोला नासिर रामपुरी को काफिर मानते हो आप? तो क्यों झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? पूरे रामपुर के जितने क्यों भी झूठ लोग हैं बोल आप रहे हो? इतना काफिर बड़ा मानते झूठा हो, जो मक्कार आला इंसान हज़रत मैंने को नहीं नहीं देखा मानते यार। वो काफिर हैं आपके साथ। इतना बड़ा झूठा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा यार। आप बड़ा झूठ बोलते हो नहीं, यार। आप पूरे मक्के शरीफ मदीने शरीफ के इमामों को काफिर मानते हो। आपको कसम से बरेली वाले अवार्ड कहते हैं मिलना उनके पीछे चाहिए। नमाजी नहीं होगी। आपको झूठ का कसम से अवार्ड मिलना चाहिए, सच में आपको झूठों का अवार्ड मिलना चाहिए। वो झूठों मौलाना का सईद सरदार अख्तर भोजपुरी साहब ने बताया था। सईदुल कज़्ज़ाबीन, इनका शजरा हम बता सकते हैं कि ये क्या है? सईदुल सैयद है या नहीं है, कज़्ज़ाबीन जो भी है। अंत, सईदुल कज़्ज़ाबीन अंत। और आपने वो मंबउल अंसाब में मौलाना साहिल फैसलामी से बुखारी सैयद लिखवा दिया कि हम बुखारी सैयद हैं। अब सुनो यार, और मैं आप फोन में कर रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत दीनी काम है, बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा बता दें, फिर जब मैं ये अल्फाज बोलूंगा कि बकवास सुनने का टाइम नहीं है तो कहोगे कि फैजान मियां ये तो बदतमीजी बता कर रहे दें, हैं, ठीक है। महबूब साहब को आप और मुसलमान बकवास करे जा रहे हो इतनी देर से, बदतमीजी करे जा रहे हो इतनी देर से। सुनो, बकवास बदतमीजी मेरे साथ बिल्कुल मत करो, मेरे साथ इल्मी पढ़ी लिखी बात करो। इल्मी बहस मैं इल्मी आदमी हूँ। अरे इल्मी थोड़ी है, जहालत की रहते हैं। साबित करें सही हदीस से, जो अकीदा आप कहना है कि अकीदा बना सकते हैं। अरे बड़े यार नादान आदमी हूँ मैं, क्या कहूँ मैं। आप जामिया अज़हर से पढ़े हैं, जामिया अज़हर में सब ये सब झटकरम ये सब फार्मूले में अपनाए जाते हैं। मसले के आला हज़रत और आला हज़रत को मानो नहीं तो काफिर हो। अब यहाँ तो इंडिया में फार्मूला जो हालत को न माने मुसलमान ही नहीं है। अरे हजरत मौलाना मुफ्ती इरशाद साहब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह कम मानते थे इस तरह से, खुद आला हज़रत उनके पास आते थे इस्लाह के लिए। यार आपने मेरी वीडियो सही से नहीं सुनी, वो मेरी जो गुफ्तगू थी वो सही से नहीं सुनी आपने। हम मानते हैं मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना हाफिज शाह जमाउल्लाह रामपुरी मुजद्दिद थे रामपुरी। यार आप सही से सुना करो, ठीक है। नहीं, मैंने सुना आपकी, मैंने एक बात सुनी, खतरा जान वाला हिसाब है। नहीं, मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी है। अरे सुनी होती तो कहाँ झूठे इल्जाम लगाते होते, कहाँ इतना झूठ बोलते होते, मेरे वाले मुफ्ती वजीउद्दीन के शागिर्द थे, बोलते होते, आपने कहाँ इतना झूठ बोलते होते, इतना झूठ क्यों बोलते, इतना झूठ क्यों बोलते, इतना झूठ क्यों बोलते, इतनी बकवास क्यों करते, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। झूठ के सिवा कुछ नहीं है, झूठ में जिंदगी गुजर रही है, रातों दिन झूठ बोल रहे हो हैं, और सिवाय झूठ के कुछ नहीं कर रहे हो। लोगों पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, लोगों को काफिर मुशरिक बना रहे हो, खुद ही अपनी जबान से हरमैन के इमामों को काफिर कह रहे हो, खुद ही अपनी जबान से मौलवी वजीउद्दीन अहमद खान को काफिर कह रहे हो, खुद ही अपनी जबान से मौलवी नासिर को काफिर कह रहे हो, खुद ही अपनी जबान से किस को काफिर कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे खिलाफ तो जो है वो कानूनी चाराजोई होना चाहिए। इतने लोगों को काफिर कह दिया तुमने इतनी देर में फोन पे, और इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो। झूठों पर अल्लाह की लानत है। फोन रखो, चलो बकवास मत करो।